हेलो नमस्कार। वेलकम टू टुडेस स्पेशल मेंटल हेल्थ डे पॉडकास्ट। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 1992 से इसको मनाया जा रहा है। मैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड विभिन्न बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस शो में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रीशा आयुर्वेद में एमडी और पीएचडी हैं। सी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन एन आयुर्वेदिक कॉलेज, और आयुर्वेद भारती के साथ वो पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हैं और टीचिंग में वो हेल्प करती हैं, कंटेंट्स क्रिएशन में वो हेल्प करती हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को वो गाइड करती हैं। वेलकम डॉक्टर प्रीशा। Namaskar. So welcome all to today's enchanting thing. So we might have already heard body is very important. But most of the time we are not aware what is actually the mind is also very important. So most of the time we don't care about the mind and we always take care about the body because we have to be in shape, we have to be in good figure. But most of the time the less challenged portion is regarding the mental health. So today's era we have to give importance to Ayurveda and also regarding the mental health. So in mental health, we have four things mainly four things are very important, that is regarding spiritual development and also regarding the personality development, that is all the features. So when we consider the word mental is mental, like that is there. So M means you can consider in Ayurvedic way like massage. So whenever you get a good massage, what do you feel actually? So it is actually nurturing the mind also. Then E for the nourishment or eat. So when you eat a good food, what do you feel there? So E is for eat. Then for N means anything which is nourishing for you. So nourishing means nourishing the mind with the help of good books or nourishing for the body. That can be taken as N there. Then when we take it as T means two things you can take. That is T for travel and T for good people, like the team. So T for travel and T for team. So, and then third thing for the Indians, that is very important, tea. So that also you can take that. When you go for a good tour, our mind is very important and we feel very cool there. And also, whenever we go for a good tea, also, and in a good team, when you are in a good team, there is no need of any counseling. So, tea is very important. Then the other one is A. A means the awareness. Awareness means you can consider it as reading. Whenever you read anything, you feel more like a journaling aspect, you can see. So journaling is very important, and side by side you can take it as any kind of your making your mind grateful, or you are making the mind more aware of the things there. So awareness A, or the reading you can take. And the last L is mental. L is love. When you are a giver, actually your mind is nurturing there, your mind is nourishing there. And the last one which I have to add here is regarding the jar, the gratitude jar. Whenever you have a gratitude jar with you and you add everything what you have achieved in your life, it will be full there, because most of the time we think we have not achieved anything, we are not good at anything. But when you keep a jar there and you keep on journaling there, you will be full. And I have to stop with one quote which is already told by the famous personalities. When you think you have more, you will end up having more. And when you have more, your mind will be more open. वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने So thank समझाया। you. वेरी नाइस। देखिए, आप लोगों ने समझा कि मेंटल हेल्थ में मेंटल का क्या इसका इम्पोर्टेंस है। उस वर्ड से ही हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डॉक्टर, आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हर किसी में, कोई मेंटली कितना भी स्ट्रांग भी क्यों ना रहे, कभी ना कभी उसकी लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या वर्किंग उसमें हो, जैसे कि इस बार का जो मेंटल हेल्थ का जो थीम है वो मेंटल हेल्थ इन वर्किंग एटमॉस्फियर। तो अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन टुडेज सिनेरियो, और वी कैन से इन वर्किंग एटमॉस्फियर।
most of our lives is already settled, or most of our days are always encouraged for the work there. So mental health at work is very important. So it is important that when you carry the stress from the work to the home will be stressed there. So it is very important to have the mental well-being at your workplace so that your home will be a happy place there. So, and one more thing is that we are stressed in always, because life has all the kind of jars and jars and trashes and everywhere, and we will be shattered in life. But still, life is a beautiful thing. Whatever happens, life is a beautiful thing. And you have to be more peace. And for that peace, Ayurveda will help. Yeah, we will come to the management of stress and anxiety. But first, we have to understand whether we are into this stress or anxiety or not. So, आज हम जैसा कि समझते हैं, हर समय चर्चा में भी आता है कि वो डिप्रेस्ड है, उसको डिप्रेशन है। तो आयुर्वेद में इसको क्या बताया गया, मीन्स व्हाट इज द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑन मेंटल हेल्थ? आयुर्वेद में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? आयुर्वेद में क्या उसके कॉजेस बताए गए हैं? तो थोड़ा उसके बारे में भी आप बताइए। Okay. According to the Samhita wise, it is called as Kadinyatmaha Manaha Kalo Dishashcha Dravya Sangraha. So in Ayurveda, Manas is considered as a Dravya part. So for the Dravya, you have the Disha, you have the things, and also whenever you think like Ektrasrida Karma Guna, like that part also when we consider, Manas is considered as the mind or the Dravya which is applicable there. For the Dravya can have the ratio variation will be there. So it can go upwards also or downwards also. So when you consider it as a dravya, there will be always the changes. So most importantly, you will be giving something for the dravya to change there. And that dravya, when you take up there, it will be having a healing effect. So always consider in manas, there is dravya there, and that manas we will be treating there. ओके और जैसे हम इसमें ये भी समझते हैं कि एलोपैथ में अगर हम जाते हैं तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको मेडिसिन भी देते हैं, तो सेडेटिव इफेक्ट वाली मेडिसिन देते हैं। और अगर हम आयुर्वेद में इसको अगर देखें तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? हमारे शो को देखने वाले आम लोग भी हैं और साथ में कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, तो हम ऐसा कुछ आप सजेस्ट कीजिए जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस में उनके लिए ये हेल्पफुल हो। हमको कैसे इसको डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो डिप्रेशन में होता है वो भी ये समझ नहीं पाता है कि वो डिप्रेशन में है, और उसके फैमिली मेंबर्स भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा कुछ है जिससे हमें समझ में आ जाए कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? I think 2 years before, the theme of World Mental Health Day was regarding the depression. And at the time, so many talk shows were arranged to where the depression was managed and how to diagnose the depression. And I think there are more celebrities who have taught regarding or come to the limelight that they have the depression, they have the ADHD problems and all. So most of the time, the laymen are valid enough, or they are knowledgeable enough about these things, especially when Deepika Padukone and Sushant Rajput's cases and all came. Most of the time, the depression thoughts had come there. So, and we are in an era where the people are aware of also the postpartum depressions also. And most of the time, relationships failures or relationships phobias are coming there. So the people are aware. And after that, there is a long gap or long period when the person will go into a stage of masking atmosphere or masking the behaviors will be there, or they go into a darkest phases of their lives. So at the times, the people who be with them, like the people who are more close to them, they will come to know the changes, mainly the behavioral changes you can see there. Because maybe the person may be having a good talkative person, or maybe the person will be a good traveler, or maybe there are some of the peculiar behavior habits of that person. In the phases of depression, there is an automatic changes or sudden drastic changes which is happening in that person. Suddenly that person becomes a very silent person, or the person doesn't go out there. And at the times there will be having silent attacks there.
And the silent attacks, why it is called there, because silently they will be crying at one of the corners there. And also they will not be able to manage the panic attacks which is coming to them. And for that one, the close people can always handle those problems, or they can understand the drastic changes. Especially the close peoples can understand or tell there. And there are so many helplines are available from government of India part. Like you can call this person or you can call this numbers where when you have the depressions there. And there are so many areas where the depression counseling centers are there. So most of the time you have to see whether there is any behavioral changes, any drastic changes in that behavior, and the person has suddenly changed to one of the darkest areas, or one suddenly he has changed to something in his life, that you can say. And you can see for the silent attacks there, and suddenly the person cannot have the management of anger issues, because anger issues may be there. They may be having a masking behavior in front of the people or family. They may be having another behavior, and some other people they will be having a sudden drastic changes there. So that one. And in the relationship, maybe they cannot talk much to the partner there, or maybe the relatives there, maybe the partner cannot understand that. That is also seen most of the conditions. Or otherwise also there are something which is seen in the most of the parenting issues, because the parenting has an effect on the depression cases. So that is why a single parenting or a divorce, separated parenting has an effect on the students' mental makeup, or the people's children's mental makeup. And when they grow up, they tend to show some of the varied type of behaviors, especially one of the behavior which is seen in a unhealthy competency mentality, because they might have failed in some other areas. They tend to show an unhealthy competencies there. So unhealthy competencies. And there was one case when one student was telling like whenever they used to get a mark, he used to trash the other boy, telling like you have scored more marks than me, or taking his paper and counting there. And for each punch they will be giving like why you have scored like that. So that is all coming from the parenting issues also there. ओके, तो अभी तक हमने मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे फिट रह सकते हैं मेंटली, ये तो हमने समझ लिया। अच्छा डॉक्टर प्रीशा, ये बताइए कि अगर कोई मेंटल इश्यूज किसी को है, कोई डिप्रेशन में है, या किसी ने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया है, और अब यदि उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो अगर कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में या आयुर्वेदिक क्लिनिक में, या सपोज आपके पास कोई आता है, तो आयुर्वेद में इससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होता है जो कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी जानना चाहिए, और कॉमन पब्लिक को भी ये जानना चाहिए कि क्या क्या बातें आयुर्वेद में बताई गई हैं जिससे कि सीवियर मेंटल इश्यूज भी ठीक हो सकते हैं। ओके, तो हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में जाते हैं तो मेनली त्रिविध चिकित्सा आयुर्वेद में बताया है। मेनली दैव वैपाश्रया, युक्ति वैपाश्रया एंड सत्वावजय चिकित्सा। जैसे दैव वैपाश्रया मेनली मेनली मंत्रा करके जो बताने वाले, मेनली हमारे माइंड को सूथिंग करने वाले दैव वैपाश्रय। युक्ति वैपाश्रया हम जो भी चिकित्सा कर लेते हैं विद आयुर्वेदिक हर्ब्स मेडिसिन, उसके साथ करने वाले एक युक्ति वैपाश्रय चिकित्सा करके। फिर सत्वावजय चिकित्सा में मेनली काउंसलिंग और मेडिटेशन। अभी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सत्वावजय चिकित्सा के तौर पे कर दिया जाता है। तो मेनली हम चिकित्सा के ऊपर जाते हैं तो देखो हमारा मेनली कंडक्शन, नर्व इम्पल्स सब शिरस रिलेटेड होते हैं। तो शिरस रिलेटेड ही ट्रीटमेंट आते हैं। उसमें पहले आते हैं रिगार्डिंग शिरो अभ्यंगा आते हैं, शिरो पीछू आते हैं, शिरो बस्ती आते हैं, एंड फाइनली शिरोधार आते हैं। ऐसे 4 काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया है। तो ये है ओवरऑल एक्सटर्नल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बता दे रहे हैं। हम इंटरनल मेडिकेशंस पे जाते हैं तो इंटरनल मेडिकेशंस में बहुत सारे हर्ब्स बताए हैं। हम सिंगल हर्ब्स देख लेते हैं तो उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडुकपर्णी, और फिर उसके साथ साथ मेनली गुडुचि है और शतावरी है। डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स है जो बता दिया है। तो ये सभी हर्ब्स सिंगल रेमेडी में भी अवेलेबल है, और कॉम्पाउंड फॉर्मुलेशंस में देख लेते हैं तो ब्रह्मीवटी है, सारस्वत चूर्ण है, सारस्वत अरिष्टा है। फिर हम रसा प्रिपरेशंस देख लेते हैं तो उन्माद उन्माद गजांकुश रसा है, रसराज रसा है। ये सब मेनली फॉर्मुलेशंस में आते हैं। और फिर हम चरका के थियरी में जाते हैं तो उसमें मेध्य रसायन के बारे में बता दिया है। चतुर्विध मेध्य रसायन में शंखपुष्पी, एष्टि मधु
वगैरह के डाल के वो चतुर्विध मेथी रसायन के बारे में बताया है। उसके साथ साथ मेनली रसायन अध्याय जनरल चरगा की रसायन अध्याय में ही बताया है, तो कार्यप्रचितिया अभयामलिकीय रसायन, वो सभी चतुर्विध चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स जो रसायन एस्पेक्ट्स में बताया है, वो भी जनरल रसायन एस्पेक्ट्स में हम देख सकते हैं। इसके अलावा जनरली हम ऑलरेडी बोल चुका है, और योगो मोक्ष प्रवर्तक करके बताया, उसमें धारणा ध्यान समाधि ये सब ध्यान एस्पेक्ट्स में आते हैं, तो वो भी हम इसके साथ साथ डाल सकते हैं। ये है जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो बोला गया है। तो ये है जस्ट ग्लिम्स जो हम आयुर्वेद में कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, और उसके साथ साथ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के हिसाब से, और वादज मेनली उन्माद अवस्था होते हैं तो शिरोबस्ती इतने टाइम पे करना चाहिए, पित्तज उन्माद अवस्था आते हैं तो डिफरेंट प्रोटोकॉल भी है। तो आप ऐसे ही देखते हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए ऑलवेज कंसल्ट ए डॉक्टर, उसके साथ ही आप उन्मादा वगैरह का या फिर बाकी सभी ट्रीटमेंट्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने समझा कि इतने सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मीन्स केवल खाने की मेडिसिन नहीं है। अगर हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपको खाने की मेडिसिन देंगे। आयुर्वेद में यदि आते हैं तो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलता है। आपको खाने की मेडिसिन तो देते ही हैं, और वो एंटी डिप्रेशन तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी बताए जाते हैं। इसमें सत्ववजह चिकित्सा भी आयुर्वेद में बताई गई है, जिसको कि काउंसलिंग कहा जा रहा है। दूसरा देव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई गई है। अब देव व्यपाश्रय में क्या आ जाता है? देव व्यपाश्रय में आप जो रोज पूजा करते हैं, एक प्रकार से वो देव की आराधना करना ही होता है, तो उससे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं, उनकी लकड़ियों को लेकर के उनसे हम यज्ञ करते हैं, उससे जो धुआं आता है, आयुर्वेद में धूम चिकित्सा या धूपन चिकित्सा भी बताई गई है। कुछ धूप के बारे में भी इसमें वर्णन किए गए हैं। तो वो जो होते हैं उससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव होता है। साथ ही हम उसको इनहेल करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी में दिखाती है। इतनी सारी मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताया, ये सारी मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके। आप अगर इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे तो ऐसे बहुत से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप यदि कोई क्रोनिक प्रॉब्लम से हैं तो आपको एडमिट भी किया जा सकता है। आप साउथ में अगर जाते हैं तो वहां पर बेंगलोर में निमहांस है, वहां कॉटेगल है। पर इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। वो मेंटल हेल्थ के लिए ही वो सेंटर है। उसके अलावा आप केरल अगर जाते हैं तो केरल तो आयुर्वेद के लिए वैसे ही इतना फेमस है। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स होते हैं। पंचकर्म ट्रीटमेंट आपको एडमिट करके करवाना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम ट्रीटमेंट भी अपने हिसाब से लेना चाहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसा ट्रीटमेंट बताइए कि मैं आपके यहाँ आऊँ, 1 घंटे की आप थेरेपी करें, मैं चला जाऊं, ऑफिस चला जाऊं, अपना काम करूं, और फिर नेक्स्ट डे फिर आके करूं। पंचकर्म ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपरली इसके लिए टाइम लेकर ही आना चाहिए। आप एडमिट होइए, 15 डेज, 21 डेज, 28 डेज आपकी प्रॉब्लम की क्रोनिसिटी के हिसाब से फिर डॉक्टर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे ट्रीटमेंट होना है। पहले जो दोष बढ़े हुए हैं उसको पहले निकाला जाता है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वात की प्रधानता मानी जाती है, द डोमिनेंस ऑफ वात दोष। सो द ट्रीटमेंट ऑफ वात दोष इज वस्ति कर्म। यदि कोई डिप्रेशन में भी है, यदि किसी को एंजाइटी है, कोई किसी को हेलुसिनेशन है, किसी को ओसीडी है, तो उसका ट्रीटमेंट वस्ती से हो सकता है। हम अभी डॉक्टर से समझेंगे कि वस्ती क्यों इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ में। तो हम वस्ती के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वस्ती के कुछ डोसेस होते हैं, जैसे कि 8 वस्ती जिसको कि योग वस्ती बोलते हैं, कर्म वस्ती, काल वस्ती। तो इसके जो भी प्लानिंग्स होंगी वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। उसके बाद फिर वस्ती अगर करना है तो वस्ती के लिए बॉडी को प्रिपेयर भी किया जाता है, जिसको कि हम प्री ऑपरेटिव या फिर पूर्व कर्म बोलते हैं। तो उससे भी आपको मेंटल रिलैक्सेशन होता है। ज्यादातर क्या होता है
कि अगर कोई पंचकर्मा ट्रीटमेंट के लिए आता है तो प्री ऑपरेटिव करते करते ही उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, मेन ट्रीटमेंट हम स्टार्ट नहीं भी किए रहते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी मैंने जो वस्ती की बात की, तो एक ऐसा लोग नेट में भी पढ़ते हैं कि गट ब्रेन सिस्टम कुछ एक है, ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ होता है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे, दो बातें इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वस्ती कर्म, हाउ वस्ती कर्म इज रिलेटेड विथ द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज के लिए हम कैसे वस्ती हेल्पफुल है, मीन्स गट से अगर हम, या कोलोन क्लिनजिंग जो कॉमनली लोग जानते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एज बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर हमको पता है कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए घृता बेस्ड मेडिसिन, मींस ऐसी मेडिसिन जिसका बेस या जिसका डोसेस फॉर्म घृता के फॉर्म में है, वो क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है? ओके ओके। एक्चुअली बस्ती हमने ऑलरेडी बोला है अर्ध चिकित्सा करके, तो ऑलरेडी हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट हो चुका है बस्ती करते हैं तो मेनली हमें लगता है कि बस्ती हर बार कोरिलेट होता है जस्ट एनीमा। तो एक्चुअली वो एनीमा के तौर पे नहीं है उसका कोरिलेशन। तो हमें कर्म काला योग बस्ती है, उसका शेड्यूल है, उसके साथ साथ माधुतैली का बस्ती है, युक्तर्ध बस्ती है, स्पेशल टाइप ऑफ बस्ती बस्ती के बारे में बोलते हैं तो शायद हमें एक एपिसोड काफी नहीं होगा, उतना डीपली है बस्ती के बारे में। तो मेनली वस्ती का जो भी पाथवे है तो मेन कंडक्शंस नर्व इम्पल्सेस कंडक्शंस वगैरह होते हैं तो वो कंडक्शन प्रिंसिपल्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके लिए क्या है कि हमें जब ब्लॉकेजेस होता है तो टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स का ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं। तो जैसे एक लॉटस, जैसे एक लॉटस स्टेम के साथ भरा हुआ है, उसका पेटल्स हम रिमूव करते हैं तो कैसे वो फूल के आते हैं, उसी तरह ही मेनली बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बॉडी का कंडक्शन प्रिंसिपल्स के लिए टॉक्सिन्स रिमूवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसलिए हम डिटॉक्सिफिकेशन करके जनरली इसको बोल देते हैं, वो शोधना करके हम पंचकर्मा शोधना करके बताते हैं, द्विविधमेव चिकित्सा करके हम बताते हैं, उसमें शोधन चिकित्सा के बारे में बताया। तो इसलिए शोधन चिकित्सा के बारे में जो बताया है उसमें बस्ती अर्ध चिकित्सा करके, तो बस्ती का जैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आते हैं तो वो ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा नर्व कंडक्शन और भी सुधर जाता है। हाँ, फिर यहाँ है पे रिगार्डिंग लोग ऐसा कृतक। समझते हैं डॉक्टर साहब कि वस्ती मीन्स एनिमा, मीन्स अगर हम हाँ किसी भी पेशेंट को बोलते हैं कि आपको तो वस्ती देना पड़ेगा, तो वो पूछते हैं कि वस्ती क्या है, तो हम बताते हैं कि एक प्रकार का एनिमा है। तो वो ये बोलते हैं कि मेरा तो अच्छे से पेट साफ होता है। हाँ तो हाँ। लोगों में एक ये बात उनके दिमाग में है कि केवल पेट साफ करना ही एनिमा नहीं होता है। आयुर्वेद का एनिमा जो है वो अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। देखिए कॉमनली हम जो मेडिसिन लेते हैं, अगर हम ओरली ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होते हैं, उसमें एसिड होता है। आधी मेडिसिन की जो एफिकेसी है वो तो वहीं खत्म हो जाती है। जब तक वो ओके एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने से पहले तक वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी पोटेंसी कम हो गई। फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में मिलता है, उसके बाद फिर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। जो मेडिसिन हम ओरली लेते हैं, वही बहुत से ऐसे भी मेडिसिन हैं जिसको कि हम रेक्टल रूट से, एनल रूट से देते हैं, जो कि वस्ती कहलाता है। तो वो मेडिसिन को अगर हम गट के थ्रू दे रहे हैं, कोलोन के थ्रू दे रहे हैं, तो वो एक बाईपास की तरह हो गया। उसमें कोई गैस्ट्रिक जूस नहीं आ रहा है, कोई एसिड नहीं आ रहा है जो कि उसकी एफिकेसी को कम कर रहा है। ब्लड उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन से, और वो पूरा का पूरा अपना इफेक्ट जो है, उसकी जो पोटेंसी है, वो अपने आप में एक अच्छा ट्रीटमेंट फिर बन जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी वस्ती का इंपॉर्टेंस हो जाता है। डॉक्टर साहब अभी दूसरी बात जो मैंने कही थी कि घृता बेस्ड मेडिसिन, या घृता बेस्ड कृतक। मेडिसिन क्या होते हैं, और व्हाई दे आर सो इफेक्टिव स्पेसिफिकली इन मेंटल हेल्थ और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज? ओके। एक्चुअली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाने के लिए मेनली घृता बेस्ड फॉर्मुलेशंस इंपॉर्टेंट है। तो शायद हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चिकित्सा भूल गए, वो है नस्य चिकित्सा के बारे में। तो नस्या में एक्चुअली उन्मादा वगैरह आते हैं तो प्रथमन नस्या वगैरह का इंपॉर्टेंस वगैरह बताया है, और उसके साथ साथ अवपीड नस्या का इंपॉर्टेंस बताया है, तो वो सब चिकित्सा में दे सकते हैं। तो एक्चुअली घृत कल्पना के तौर पे हम दे देते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर जल्दी क्रॉस हो जाते हैं, तो इसलिए इफेक्टिव होते हैं
हैं इस जो भी मेंटल कंडीशंस होते हैं, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं तो वो मेंटल डिसीजेस में इफेक्टिव होते हैं। इसलिए ज्यादातर घृता बेस्ड फॉर्मुलेशंस या फिर ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशंस हम इंटरनल मेडिसिन को देते हैं इसलिए। एंड घृता एज इट इज उसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं तो इट इज हैविंग ए सत्व कंसेप्ट यार। हमें यहाँ पे सत्व और फिर पित्त शाम का प्रॉपर्टी जल्दी चाहिए, एंड पित्त के लिए घृता बेस्ट है, अग्र्य करके हमें बताते हैं। अब एक आयुर्वेद में ये भी एक कॉन्सेप्ट, अ, उपान का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मेडिसिन की एफिकेसी और उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग टाइप की मेडिसिन के लिए अलग अलग अनुपान हम इसमें बताते हैं। तो ये सभी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको ये सजेस्ट करेंगे। आपको ये सारी जो भी मेडिसिन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको अपने से नहीं लेना है, क्योंकि इसके डोज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, इनका ड्यूरेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का होता है। सारी मेडिसिन सभी के लिए नहीं होती हैं, किसी के लिए कोई मेडिसिन इफेक्टिव होती है, किसी के लिए कोई मेडिसिन। आई थिंक इतना वैरिड अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट्स कोई भी सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज और अनएक्सप्लोर्ड थिंग्स हम आपके सामने बताने के लिए ये इंटरेक्शन आपको हेल्पफुल होगा ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। या तो इस प्रकार से हम और भी डिजीजेस लेकर नेक्स्ट एपिसोड्स में आएंगे। और आपको भी यदि कोई इश्यूज है, हेल्थ इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके उस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन बताने के लिए। हम आपकी वो जो हेल्थ इश्यूज है उसको अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे। डॉक्टर एक बात और ये है कि जो लोग अभी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं या किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं या एलोपैथिक ट्रीटमेंट, साइकियाट्रिक की मेडिसिन चल रही है जिनकी, तो क्या ऐसे कंडीशन में वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं। कैन आयुर्वेदिक मेडिसिन या और ट्रीटमेंट्स be taken together along with allopathic treatments? It can be taken provided what is the drug of choice we are using, because some medicines are there which cannot go very well with Ayurvedic medicines. So depending upon which class of medicines, so in depending upon that, there is an interaction which is there, because most of the time we tell Ayurveda is not having not much interactions or side effects, but it's not like that. So first you have to understand which class of medicines will not go together with the allopathic medicine or which doesn't suit well with the Ayurvedic medicine, and that maybe can be avoided. And also what I have to add is regarding the ashwagandha, because most of the time ashwagandha is not suitable for the people who have a liver ailment and all, and most of the time Ayurveda is blamed generally because people just take ashwagandha without any kind of knowledge and they end up in liver diseases, and that's why the blame will come. So always consult a doctor whenever you are doing something overhand, because Ayurveda is never a traditional medicine which should be practiced on with on your knowledge, but with a traditional healer only you should do it. And here maybe the treatment and all is possible, but the side by side the medicines can be done in a tapering dosage. That is why tapering dosage is very important. Most of the time the people do a mistake, like they suddenly stop the medicines, and what they think, they like I'm okay like that, but and because of that they get a panic attack, and when the panic attacks started, most of the time they will have to switch on with a varied doses or a different dosage there. So to avoid that one, consult with the doctor or with the permission of your doctor. Tapering doses you can take, and side by side you can start your Ayurvedic medicines or Ayurvedic treatments also. And in that one, Kerala Panchakarma treatments, the Talapudichal treatment and the Shirodhara and also the Shirobasti is one of the best hand treatments which is told there. So that kind of treatments, when it is practiced, that it will be the best healing for the mind there. ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, सुना और समझा। बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे लिए नए हो सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को हम समझेंगे। आज का जो ये एपिसोड है ये मेंटल हेल्थ को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। बहुत सारी हमने इम्पोर्टेंट बातें समझी और हम इसको समराइज करते हैं। हमें अपने मेंटल हेल्थ, जैसा हम ये कहते हैं ना कि
सिर्फ फिजिकल हेल्थ में हमको ध्यान नहीं देना है, मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस है। जो पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे, आप सभी लोग सुनते हैं कि 8th के बच्चे, 10th के बच्चे वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी बातें शेयर करने का ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स उनके ऊपर अपनी जो बातें हैं वो थोपते हैं। अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वो करे। मैंने अगर अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं तो मैं अपने बच्चों पर दबाव डालता हूं कि यू शुड स्कोर गुड मार्क्स, यू हैव टू बी द फर्स्ट इन योर क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह में है, मार्किंग स्कीम जो है वो एक अपनी जगह में है, नॉलेज एक अपनी जगह में है। तो हमको बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको अपनी रूटीन में मेंटल हेल्थ के लिए भी समय देना है। आप अपने 24 आवर्स में, यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज के लिए भी आप टाइम निकालिए, जिसमें योग आपको बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा इसमें स्ट्रेस रिलीविंग के लिए होता है। साथ ही आपको मोटिवेशनल बुक्स भी आपको पढ़नी चाहिए। स्क्रीन टाइम आप जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे भी मेंटल स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं, और बाद में फिर वो जो मेंटल फटीग है वो फिर धीरे धीरे करके हमारे फिजिकल हेल्थ में भी फिर दिखने लग जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रीशा, आपने अपना टाइम दिया। हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी की यदि कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हो तो आप आयुर्वेद भारती के वेबसाइट में या फिर cytoveda.com में जाकर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर प्रीशा। हम आज का शो यही एंड Thank you करते हैं। again. So we can make our universe a better place to live with our good mental health. Thank you.